Good morning students, welcome again in digital classes. And before the starting our today video, I would like to tell you about the previous video. What we studied in previous video, dear student. In that video we have discussed about the properties of quadrilaterals, okay, and I hope you all got all the points related to that video. But today I am telling the examples related to the quadrilaterals, means different type of quadrilaterals I told you, right? 6 type of quadrilaterals I told you, and today I am solving here questions, examples related to that quadrilaterals. Means first we solve the questions related to the parallelogram. After that, one by one we will solve the question related to rhombus, rectangle, square, trapezium and kite. Okay. So I am telling you here different type of question related to the parallelogram that is asking in the exam board. Okay. Board exams you can say, otherwise in your home exam. Different type of questions I am telling here, examples I am telling here. Okay. So be ready and be active to learn these examples, how to solve it, okay, and how to write the solution. That is the important. First understand the concept of the question, what is asking, okay, and what we find. If you can identify these two things, so you can get easily solution. Right student? Now start our video. First example is related to the parallelogram, and this is simple and basic example related to the parallelogram. In the given figure, best is a parallelogram. Okay, in the given figure, best is a parallelogram if angle B equal to 70 degree, find other angles. Find other angles of parallelogram. This is very simple and easy question. What is given here? Sometime figure is given and sometime not given. Direct you can say, direct telling base is a parallelogram. If angle B is equal to 70 degree, find the other angles of parallelogram. So dear student, in that condition you draw the figure. Okay. First draw the figure of parallelogram. Okay. And here you note down BEST, best, and this angle is 70 degree. This angle is 70 degree. Best is a parallelogram, so draw the parallelogram figure. After that, represent the angle according to the measurement. You know that I have started from B here. I can start from here, but you know that this is the measurement of greater than 70 degree. ओके, अप्रोक्सीमेट यदि हम उसको बाय ऑब्जर्वेशन इसको लेके चलें तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये एंगल है वो क्या आएगा, 170 डिग्री से ज़्यादा आएगा. तो इसको हम लेके चलते हैं कि दिस इज द 70 डिग्री एंगल. सो यू आर फाइंडिंग हियर रिमेनिंग एंगल्स. रिमेनिंग एंगल मीन्स सपोज दैट दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. समटाइम इन दिस वे क्वेश्चन आस्किंग बेस्ट इज ए पैरेललोग्राम इफ एंगल बी इज इक्वल 70 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. इस वे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको. यदि इस वे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस वे में सॉल्व करना है, और पर्टिकुलर आपको एंगल्स के नेम दे रखे हैं कि एक्स वाई और जेड फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. नोट डाउन दीज थिंग्स. हाउ टू स्टार्ट द सॉल्यूशन. आंसर इफ फिगर इज गिवन इन ऑलरेडी क्वेश्चन, सो यू शुड ड्रॉ अगेन इन आंसर. फिगर को आपको वापस आंसर में ड्रॉ करना है, ये तो नोट करें आप. देन यू हैव स्टार्ट योर सॉल्यूशन. व्हाट इज, you can find out the value of x first. And how can we find? Note down here. Best is a parallelogram. Best is a parallelogram. Best is a parallelogram. This is given. Now we can write. So एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180. कि आप इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा. वाई
Dear student, again I am telling the properties of parallelogram, and what we have discussed in properties of parallelogram. I told you opposite sides are parallel, right? बताया मैंने कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है. एंड सपोज दैट these two lines are parallel and this is the transversal, right? So sum of angles, इंटीरियर एंगल आप बोलते हैं, sum of interior angle on the one side of transversal line is 180. और बेसिक फॉर्म में बोलें तो आप सिंपल वे में इसको लर्न करना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180. सम ऑफ एडजेसेंट मीन्स एडजेसेंट एंगल्स ये हो गए क्योंकि इनकी कॉमन साइड है, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है. तो आप लिख देना सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स. ये आप इसका रीजन राइट कर सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. नाउ पुट द वैल्यू. एंगल बी इज 70 डिग्री, एंगल ई इज अक्स एंड 180. सो वैल्यू ऑफ अक्स इज इक्वल ट्रांसफर 70 डिग्री इन RHS. So we have put the sign negative, and at last we can write value of x is equal 110. So here we can easily find out the value of x equal to 110, right? Next, how to find the value of y? Then again you write y equal to या आप डायरेक्ट इसमें राइट कर सकते हैं, मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू एंगल बी, एंगल एस इक्वल टू एंगल बी. वाई बोथ एंगल्स आर इक्वल. सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम वी कैन से अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. व्हाट यू कैन से, you can write here properties opposite angles are equal, that is the property. So mention it. Why these two angles are equal? Because both are opposite angle, so both are equal, right? Now put the value of angle y equal s and value of b is equal 70 degree. So easily we can find out the value of y equal to 70 degree. Next, again you write now angle ZT equal to angle E. एंगल जो T है वो एंगल E की इक्वल कैसे हुआ, फिर आप रीजन वही राइट करेंगे. वाई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. कि अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी वैल्यू इज जेड एंड ई वैल्यू इज 110. So one by one step we can use and we can easily find out the value of x, y and z. I hope you are getting all the points here. Again I am repeating here. How to find out the value of x? So you can use here sum of adjacent angles. Okay, right? So in this way you can find out the value of x 110. After that you are finding the value of y. So you can put again adjacent angle, sum of adjacent angle is 180. But if this is a direct way, because we know that the properties of parallelogram opposite angles are equal, so using this property you can say value of y equal to 70 degree, and same property you can use and you can easily find out the value of z equal to 110 degree. Okay student, so in this way you can easily find out the solution of this question and related to that questions. Means different type of questions are also come in your test book now, also in book. Relate how to find the angles of same question I am telling for rhombus, for rectangle, for square. Okay, but square and rectangle, so all angles are 90 degrees, so I think no need to, never is asking such type of question. But same as rhombus, okay, you can use it, same process you can use, right? Now I am telling the other type of question, means different type of question from the parallelogram. Note down question number 2 related to the parallelogram. What is saying example 2? In a parallelogram,
in a parallelogram ABCD, angle A equal to 3x plus 2 and angle B equal to 4x कितना ले बेटा इसका 5x ले लेते हैं ना, 5x plus 8. So find the value of, so then find the all angles. Find the all angles. All angles means find the value of x. या तो समटाइम ऐसा पूछा जाता है कि if in a parallelogram ABCD angle A equal to 3x plus 2 and angle B equal to 5x plus 8, so find the other angles. Find the other angles. या फिर पूछा जाता है what is the value of x. दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है. फिर क्या पूछा जा सकता है, find the value of x. दो टाइप से क्वेश्चन, या तो आपको पूछा जाएगा ऑल एंगल फाइंड आउट करना, या फिर क्या पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स इफ एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू आपको दे रखी है. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, या यू कैन इजीली ड्रॉ द फिगर ऑफ पैरेललोग्राम. इन दिस वे यू कैन ड्रॉ ABCD. Angle A is here 3x plus 2, angle B is here 5x plus 8. So we are finding value of C and value of D and also value of A and value of B. मीन्स आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि ये कितनी डिग्री का है, मेजरमेंट डिग्री में आना चाहिए, तभी इसमें बोला है कि फाइंड द ऑल एंगल्स. ओके, या फिर शॉर्ट फॉर्म में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपल सा पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो आप कैसे बताएंगे उसको, आप कैसे बताएंगे? इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा, 4x ले लेते हैं यहाँ पे, 4x प्लस 8, 3x प्लस 2 एंड 4x प्लस 8. ओके, या फिर और इसको अच्छे वे में लेके देखें तो आपको ये लेके चलना पड़ेगा 3x प्लस 2 के साथ में, चलो 3x प्लस 2 एंड 4x के साथ 77. चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 2x प्लस 3 ले लेते हैं. ठीक है, कितना ले लेते हैं 2x प्लस 3. क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं इजी से, क्योंकि प्रॉपर कैलकुलेशन आनी चाहिए, इसके लिए आपने एग्जाम्पल अच्छे से लेना है. 3x प्लस 2 एंड 2x प्लस 3 चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन किस वे में आता है. होल पार्ट में आता है तब तो इजी है अपना सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है. डियर स्टूडेंट, नोट डाउन हियर what you write here in solution. Draw the figure and write here ABCD is a parallelogram. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है बेटा, या तो आप क्या करेंगे ऑल प्रॉपर्टीज राइट करें, अदरवाइज है बेसिक फॉर्म में कि ABCD is a parallelogram means this parallelogram satisfied all the properties. Opposite sides are parallel and equal, opposite angles are equal side और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. इस वे में आप क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम नोट कर दिया तो और थिंग्स है वो आपको राइट करने की आवश्यकता नहीं. नाउ यू कैन डू राइट हियर. सो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180. वाई रीजन राइट करेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है 180 होता है, तो वो भी आप राइट करें एंगल्स इज 180. सप्लीमेंट्री भी राइट कर सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है. इस कारण हमने क्या किया, एंगल ए और बी को ऐड कर लिया. चलो ऐड कर लिया तो लिखो इसमें ए की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 2 और बी की वैल्यू कितनी आ रही है 2x प्लस 3 इक्वल टू 180. ऐड देम. हाउ टू ऐड वेरिएबल, फर्स्ट ऐड द वेरिएबल एंड आफ्टर दैट ऐड द कॉन्स्टेंट. 3x प्लस 2x 5x and 3 into 5 equal to 180. Now transfer the constant. 180 degree minus 5 equal to 175. Okay, these questions are also in degree, ये नोट कर लेना आप. ठीक है, डिग्री में आ रहे हैं एंगल्स हैं आपको. 5x, so how to find the value of x equal to 175 upon 5. After the division we will get x value is
35. ओके, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 35. तो यदि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा जाए तब तो आपका सॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है. एक बार फिर चेक कर लें. इफ इन ए पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इक्वल टू 3x प्लस 2, एंगल B इक्वल टू 2x प्लस 3. सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? So for the value of x, we will here use ABCD is a parallelogram. So therefore, otherwise you can say so AB angle A plus angle B equal to 180 degree. Region sum of adjacent angle is 180 degree. After that, using this way, you can put the value 3x plus 2 and 2x plus 3 equal to 180 degree. Now add the variables, add the constant. So we will get 5x plus 5 equal to 180 degree. After that, transfer the constant term. So 5 transfer in RHS. So we will get 180 minus 5. Remaining is 175. Remaining here LHS part is 5x. Now give the divide by 5. So we can easily find out the value of x. That is 35. So your solution is completed here. But if in this way question is asking find the all angles, means first find out the value of A, then B, then C and then D. So how can we find? Dear student, note down these things again. Here I am telling you one by one. Value of angle A. This student, value of angle A is 3x plus 2. 3x plus 2. So we will put the value of x equal to 35. मीन्स आपको 35 से पहले इसको मल्टीप्लाई करना है. कितना आएगा? 105 प्लस 2 डिग्री टोटल इज 107. सो एंगल ए कितना आ गया? 107. राइट. यदि आपके एंगल 107 आता है तो एंगल सी भी कितना आएगा? आप कहोगे एंगल सी भी कितना आएगा? 107, बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स. अपोजिट एंगल्स. राइट. नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट हियर. यहां बताता हूं एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस 3. पुट द वैल्यू ऑफ x. X value is 35, so 2 into 35 plus 3. How much? 73. Right? कितना हो गया? 73. If angle B is 73, so B और D क्या हो जाएगा? Equal opposite angles. So angle D equal to also 73. Right here opposite angles. And that way, and at last you can write therefore the all angles of parallelogram ABCD are 107, 73, 107 and 73. In that way you can complete your solution. Okay student, note down this example in your rough note or a fair notebook. Okay, try to solve all the questions related to this. Okay student, now I am telling the last and final. Okay, 1 and 2 question, I think 2 examples are there again. So second last question I am telling here, that is again related to the angles. Okay, related to the angles but different type. Different type means in a parallelogram the opposite angles are 4x plus 1 and 5x minus 1. Find the value of x. otherwise क्या पूछा जाएगा? Find the all angles. ओके, क्या पूछा जाएगा आपको कि दो एंगल अपोजिट एंगल आपको दे रखे हैं 4x प्लस 1 और 5x माइनस 1. ये डिग्री में है. या तो पूछा जाएगा कि x की वैल्यू क्या है. एक क्वेश्चन तो ये हो गया. या फिर पूछा जा सकता है फाइंड द ऑल एंगल्स, कि उनके सब के सब मेजरमेंट भी आपको बतानी है. दो वे से क्वेश्चन पूछा जाता है. तो दोनों वे से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस वे क्वेश्चन को कैसे सोल्व आपको करना है. राइट. तो इसको हम कैसे करेंगे एक बार चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन राइट है नो.
ठीक है, चलाएंगे। देखो, हाउ टू राइट द सॉल्यूशन, राइट। फर्स्ट वी राइट, गिव द नेम ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। सपोज दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम या PQRS, हियर आई एम टेलिंग हियर PQRS is a parallelogram, okay. So write here PQRS is a parallelogram. नोट डाउन हो गया। अब अपोजिट एंगल कौन से लें, तो आप फिगर ड्रॉ कर लें, सिंपल सी एक पैरेललोग्राम की, या आपने ड्रॉ कर लिया। अब PQR आप कैसे भी स्टार्ट कर दो, बट एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिस वे में आप राइट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज चलें, या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। अब डियर स्टूडेंट, हम नोट करते हैं अपोजिट एंगल्स की। अपोजिट एंगल यदि हम P को लेते हैं तो P की रेस्पेक्ट में कौन सा अपोजिट एंगल होगा, R होगा। तो आप ये बोल सकते हैं ये वैल्यू P की है तो ये वैल्यू किसकी होगी, R की। फिर आप कहोगे सर हमें P और R नहीं लेना है, तो आप ये मान लो कि आपने ले लिया Q, तो Q के रेस्पेक्ट में कौन सा अपोजिट एंगल हो गया, S हुआ। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये यदि Q की वैल्यू है तो ये किसकी वैल्यू होगी, S की वैल्यू होगी, राइट है। तो आप किसी को भी ले सकते हैं। सो आई एम हियर टेकिंग P एंड R, ये मान के चलते हैं कि एंगल्स, ये एंगल P है और ये एंगल कौन सा है, R, जबकि ये प्रॉपर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है, ओके। ना तो पैरेललोग्राम का नाम दे रखा होता है, ना पर्टिकुलर आपको एंगल दे रखे होते हैं, ये नोट कर लेना। डायरेक्ट इसी वे में क्वेश्चन आएगा, आपको वे कन्वर्ट करना है और सिंपल सा लिखना है PQR इज ए पैरेललोग्राम, सो एंगल P इक्वल टू एंगल R, कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं वो लिखना, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम वी कैन से अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। Opposite angles are equal, right? Now put the value of P. P value is here 4x plus 1 and R value is 5x minus 1. Right? Now transfer the variable, transfer the constant. After the transposing, means what we get, 4x minus 5x equal to minus 1 and minus 1. कैसे हुआ, 5x को हम लेके आए R किधर, LHS से की तरफ, तो कितना हुआ, पॉजिटिव 5x था, इधर आते किसमें हो गया, नेगेटिव में। पॉजिटिव 1 को लेके, कांस्टेंट को लेके गए हम RHS में, तो पॉजिटिव 1 किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव 1 में, राइट। ऐड करते हैं तो -1 और -1 कितना होता था टोटल, -2, और इसको हम करते हैं तो कितना आएगा, -x। सो एट लास्ट वी कैन से x वैल्यू इज 2, बिकॉज माइनस डिवाइडेड बाई माइनस प्लस। आपको ये एरो वगैरह नहीं लगाना है, ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है, ओके। So after that we will get the value of x. So first question is completed. Find the value of x. x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको इतना ही सॉल्यूशन करना है। बट यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द ऑल एंगल्स, तब आपको 1 बाय 1 क्या करना है, एक एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन राइट करना है। कैसे वो बता देता हूँ। चलो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, P से स्टार्ट कर लेते हैं। एंगल P वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4x plus 1। सो आप यहाँ पे नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 2 या 8 प्लस 1 कितना आएगा, 9, राइट। बट आई होप इस वे में आपको शायद ऑल द एंगल्स आपको ना पूछा जाए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी है वो क्या नहीं हो रही है, सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। x की वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, तो 8 और 9 आता है, तो ये 9 और 9 और ये आई थिंक 10 और 10 जो भी आता है, 9 9 ये आएगा, टोटल 360 होने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको बेसिक फॉर्म है, इसके लिए आपके पास क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओनली एंड ओनली फाइंड द ऑल एंगल्स, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये लो आपका स्टॉपेड क्वेश्चन। इस वे में आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आपको अपोजिट एंगल्स आपको दे रखे होते हैं, और कैसे आपको x की वैल्यू या जो वैल्यू ऑफ x है या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपको पूछा जाता है, राइट स्टूडेंट। नाउ again I am telling the final question related to the parallelogram, okay, and that is related to the diagonals of parallelogram, okay. Final example, I think 3 examples I told you and I hope you are getting all the points. Last and final example related to the parallelogram. If the direct I am writing PQRS is a parallelogram
in which diagonals intersect each other at O क्या दे रखा है, PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ओके, PQRS इज ए पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स intersect each other at O. So if OP equal to 4x plus 5, OP equal to 4x plus 5 and OR equal to 3x plus 8, then find the value of x. ये लो सिंपल सा एंड फाइनल क्वेश्चन. अब कई बार जो क्वेश्चन आ रहा है वो किस बेस पे, डायगोनल बेस पे. डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी मैंने पैरेललोग्राम में क्या बताई है वो आप नोट करें और उसको लर्न करें अच्छे से. आई टोल्ड यू अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट वर्ड मैंने आपको बोला था. बाइसेक्ट मीन्स हाफ, ओके, अदरवाइज यू कैन से टू इक्वल पार्ट्स. बाइसेक्ट का मतलब क्या करता है, वो डायगोनल को टू पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. और आपको क्या क्या दे रखा है, ओपी की वैल्यू दे रखी है. ओपी कितना दे रखा है, 4x plus 5 और OR कितना दे रखा है, 3x plus 8. इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू ओपी की होगी वो वैल्यू किसकी होगी, OR की होनी चाहिए. सो वैल्यू ऑफ x कितना आएगा, डायरेक्ट यू कैन राइट हियर सॉल्यूशन. ये इतना ही समझना है. इसमें आपको राइट करना होगा PQRS इज ए पैरेललोग्राम, PQRS ए पैरेललोग्राम. सो OP इक्वल टू OR. वाई, ये दोनों इक्वल कैसे होता है, जो लेंथ OP की होगी वो लेंथ OR की कैसे होगी. तब आपको लिखना पड़ेगा डायगोनल्स, नंबर इसी के मिलते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. अदरवाइज तो मैं क्वेश्चन में ही मेंशन कर देता, इंटरसेक्ट की जगह मैं क्या राइट कर सकता था, बाइसेक्ट. तब तो सॉल्यूशन पूछने की आवश्यकता क्या थी. इसी के लिए भी नंबर पूछे जाते हैं कि आपको प्रॉपर्टी लर्न है या नहीं. यदि आपने ये राइट किया OP इक्वल टू OR और ये प्रॉपर्टी राइट नहीं की है तो चांस कम होते हैं थोड़े. ठीक है, वो टीचर पे डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा. OP इक्वल टू OR. सो पुट द वैल्यू. OP वैल्यू इज हियर 4x plus 5 and OR value is 3x plus 8. Okay student, now start here, transfer it. 4x minus 3x equal to 8 minus 5 मीन्स वेरिएबल को हम लेके आए LHS की तरफ, कांस्टेंट को हम लेके गए RHS की तरफ. 4x माइनस 3x कितना हो गया x, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3. ये लो आपका सॉल्यूशन. सो वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. सो हियर अगेन आई एम टेलिंग यू हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पैरेललोग्राम्स. ओके, इफ डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर गिवन. समटाइम देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्लीट डायगोनल की लेंथ भी दे दी जाती है. अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आ गया, अब आपको पूछ लिया जाता है यहाँ से व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी होगी. तब आपको 3 की वैल्यू इसमें पुट करनी है और इसमें भी पुट करनी है और फिर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है. तो लेंथ ऑफ डायगोनल भी आपके पास आ जाएगा. ओके स्टूडेंट, सो आई टोल्ड यू 4 एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द पैरेललोग्राम एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स of rhombus and rectangle and square, trapezium also and also kite. So I think 5 quadrilaterals are remaining here. So I hope you are getting all the points here. Thank you for watching.